हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विदिशास क्रिएशंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ फीलर्स बताए थे गोंड आर्ट के, जो थे ये हमारे। इन दिस वीडियो वी विल कलर ऑन दैट एंड फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन सम मोर बॉर्डर्स बिकॉज दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बाकी पैटर्न्स पे जाएंगे। जैसे जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न लेफ्ट हुआ था नेक्स्ट क्लास में, वो था, मैं बॉक्स करके बताती हूँ। जस्ट यू नीड टू ड्रॉ सम बेसिक लाइंस लाइक दिस। लाइक दिस, ओके, दिस इज 13। और हमारा जो बॉर्डर मिस हुआ था कल के वीडियो में, दैट इज लाइक you need one box, okay, and after that just you can make two lines like this, and just you need to put some dots inside these two lines like this, okay. Now this is 14। एक बॉर्डर मैं आपको सोचनी और बता देती हूँ, दैट इज just draw one leaf, two leaf, third leaf, and you can make another leaf like this, okay. And just you need to draw color first, then we will start fillings, okay. So now you will start coloring of these fillers, then you can understand how is it used, how can these fillers to use in the main motif, okay. So start with this border. Because I am using the paper, then I will use the poster color to make fill these lines, okay. These are my poster colors. I am using round brush. First I am using purple color, okay, inside this portion. The last portion, just you need to make any dark color. I am using purple. Okay, like this. After that I'll use green color. I am leaving one portion and just I am filling the color in third line. Just use very tiny brush, 0 number or 1 number brush, then you can make it easily, and just prefer round brush to fill this portion. There is no rule. If you are comfortable with flat brush, then you can use flat brush, but I think personally I feel round brush is okay to fill this portion.
One portion is left. I will make it later. Poster color is water based color. Because I am using paper, that's why I am using poster color. Okay, like this. Now your border is ready. No need to do anything. Okay, now we'll move forward in the second border. You can use like this. Suppose I am using light green here, very light green. Okay, the lightest of the green portion here. Okay, after that I am using one portion, I am leaving one portion and just use the dark green. Like this. If it is bigger, then you can use fill like this. Otherwise you can use one light, one dark, one light, one dark. Okay, just make it random. Okay, like this. Now we will come in third border. All the borders will be colored. It's not necessary. सारे borders coloring इस time ज़रूरी नहीं है. जैसे ये वाला जो आपका border है, किसी भी plain surface के साथ आप black line दे रहे हो, that is okay. Now we will move forward in this border. तो इस border को करने के लिए आपको first you will take purple color to fill this portion. You can use any color. You can use any color. It's totally up to your choice. Okay. After that, I'm using pink color and make it here. Okay, like this. After that, I will use green color to make full portion. You can use some thicker brush. I am using this brush. That's why I'm spreading my color with this brush only. And this is poster color, so it is spreading properly. Okay, now like this. See, line is visible. So you can use, after finishing the coloring portion, you can use the black color to make all these lines. Okay. You can make it dark because it is too light. Okay, like this. दिस इज़ द बेस कलर. किसी बेस के साथ आप ये डॉट कर सकते हैं, किसी भी दूसरे बेस के साथ आप ये डॉट कर सकते हैं. इसके लिए सेम पैटर्न आप फिल कर सकते हैं. यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ. सपोज येलो कलर आपने यहाँ यूज़ किया,
all the first line. Okay, जो भी फर्स्ट पोर्शन है आपका, आपने उस पर येलो कलर यूज़ किया है। ऐसे, ठीक है। इस पे अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप कोई सेकंड कलर इसके लिए फिल कर लें, या तो आप ब्लैक कलर लेकर के लाइंस दे दें। ये आपके ऊपर है। जैसे जैसे वी विल स्टार्ट डूइंग पैटर्न, मैं आपको साथ के साथ समझाते जाऊंगी कि आप इन सब बॉर्डर्स के साथ में, इन सब फिलर्स के साथ कैसे आगे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे पैटर्न छोड़ते हैं। यहाँ पे जो है वो भी किसी पैटर्न के साथ ही चला जाएगा। लाइक आप कोई ट्रंक बना रहे हैं, इफ़ यू आर मेकिंग एनी ट्री, इफ़ यू आर मेकिंग एनी मोटिव लाइक डियर, लाइक एनीथिंग एल्स, देन यू कैन यूज़ दिस बॉर्डर ऑन दैट ओनली। इसके लिए भी आप इस पैटर्न को जो यूज़ करना है आपको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक द, बिकॉज मधुबनी गोंड आर्ट में कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता है, जो होता है सिर्फ मोटिव होता है, एंड इट कैन बी इन लेंथ और ब्रेथ। ओके, तो ये लंबाई और चौड़ाई में ही पैटर्न होते हैं, बिना किसी बैकग्राउंड के। बैकग्राउंड अगर आप देना चाहिए तो किसी एक कलर से दे दीजिए, उस पर कोई वर्क नहीं होता है। तो इस मोटिव को भी आप किसी तरह से, आप ट्री के ब्रांचेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सपोज कोई आपने डियर बना रखा है, एलिफेंट बना रखा है, उसकी डेकोरेशन में आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ। इसको भी आप बेस में यूज़ कर लीजिए, इसको भी आप बेस में यूज़ कर लीजिए। इवन ये पैटर्न जो है आपने जैसे बेस बनाया, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला पैटर्न, जैसे आपने लिया कोई कलर, दैट इज द, आपको कोई कलर लेना है, आपने लिया ये पिंक कलर, ठीक है। आपको बनाना है डियर, आपको डियर का बैग बनाना है। आपने ये कलर लिया एंड जस्ट ये देखिए, ये ब्लैक कलर विजिबल होगा, बट आपको बेस बनाना है, ठीक है। इस कलर से आपने बेस बना दिया। आप ये भी कर सकते हैं कि एक बॉक्स आप एक कलर से और दूसरे बॉक्सेस आप दूसरे कलर से बना दीजिए। ये आगे जो मोटिव हमारा आएगा उसके साथ हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो हमारा मेन मोटिव है, आप इन फिलर्स को समझ जाइए कि इन विच मैथड यू कैन यूज़ दीज फिलर्स इनटू द पिक्चर। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप पहले पूरा बेस तैयार कर लीजिए, कि एक एक मैं आपको समझाने के लिए कर रही थी। ये देखिए, ओके, आपने पूरा बेस तैयार कर लिया। उसके ऊपर आप ये पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। ओके, किसी भी बेस कलर के ऊपर आप ये वाला पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ये वाला पैटर्न। उसके साथ हम इस पैटर्न को भी आपको बता देते हैं। कोई भी लाइट शेड या डार्क शेड, जो भी आपकी मर्जी है, उस शेड को आप लीजिए। आपने येलो कलर लिया, ओके, आपने इस बेस को येलो कलर से फिल किया। बेस मीन्स ये बेस या बॉर्डर नहीं, क्योंकि गोंड आर्ट में कोई भी बॉर्डर या कोई पैटर्न इस तरह का अलग से नहीं होता। जो हम मोटिफ बनाएंगे, लाइक हम एनिमल्स बना रहे हैं, हम किसी नेचर से रिलेटेड चीज़ें बना रहे हैं, हम फ्लावर बना रहे हैं, हम पीकॉक्स बना रहे हैं, हम बर्ड्स बना रहे हैं, या वी आर मेकिंग एनी ट्री, ब्रांचेस एंड माउंटेन्स। माउंटेन्स तो इसमें होती नहीं है, बट उस तरह की कोई भी चीज़ें अगर बना रहे हैं, उसके लिए हम ये कैसे यूज़ करेंगे, ये उस चीज़ के लिए है, ठीक है। ये मोटिव पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। जैसे इस पे हम थोड़ा आपको वर्क करके बता देते हैं। सपोज ये आपका बॉर्डर है, आपने यहाँ पे
अगर आपके ब्रश में कोई प्रॉब्लम आ गई है या आपका ब्रश मूव नहीं कर रहा है, आप कलर लेके अपने ब्रश पे ऐसे पॉइंट अपनी स्किन पे बनाइए. ओके, सी दिस इज़ द पॉइंट. ऐसा, ये आपका पॉइंट तैयार हो जाएगा. ये आपने इसको बनाया. ओके, अब आपको कोई भी दूसरा कलर लेना है. सपोज आपने ले लिया ब्लू कलर. यहाँ पे आई हैव लेफ्ट द second portion, but right now I am not leaving any portion and just complete blue color here. Okay, like this. You can do one thing. You can use first light blue. After that you can use, in the third portion you can use dark blue. Okay, got it? Now like this, see, this is the गोंड की स्पेशलिटी है कि गोंड पेंटिंग कैसे एक दूसरे से अलग दिखती है. ये सारी चीज़ें आपकी किसी मोटिव पे जाएंगी, तो ये आप सेपरेटली यूज़ नहीं करते हैं. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो आप ये बना रहे हैं ये कहीं भी सेपरेटली यूज़ नहीं होने हैं, ये मोटिव पे जाने हैं. तो ये एक लर्निंग प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया. अब जैसे यहाँ पे सेम हम कर सकते हैं. हम जब आगे चीज़ें बनाएंगे आप धीरे धीरे वहाँ पे जान पाएंगे कि कैसे क्या चीज़ें यूज़ होती हैं. हमने येलो कलर लिया और ये फिल कर दिया. तो सेपरेटली समझने में ये फ़ायदा है आपको कि आपने चीज़ों को बहुत ही डीपली समझा. अब आप अपने इन चीज़ों को जब मेन मोटिव पे हम नेक्स्ट वीडियो से चलेंगे तो आप इजीली ड्रॉ करने के बाद, आपको बेस रेडी करने के बाद, यू आर अवेयर अबाउट दीज फीलिंग्स विच इज़ स्पेशलिटी ऑफ गोंड आर्ट. ओके, नाउ दिस इज़ लाइक दैट. अभी नाउ आई एम मेकिंग वेरी डार्क शेड to make this portion. Okay, this one is dark, this full leaf is very dark, and this one is dark. Suppose now I am making the light shade. You can use same shade to make light, otherwise you can different shades of green to make this pattern. Okay, after that we will make some main motif on that only. I hope आपको समझ में आई होंगी ये चीज़ें कि हमें ये चीज़ें कहाँ यूज़ करनी. ये भी सिंपल बेस के ऊपर जाएगा. कोई भी सिंपल कलर का बेस होगा जिसके ऊपर वी विल अप्लाई दीज फिलर्स to fill any subject. Okay, and these are some kind of pattern which we will use in the main motif, like any animal, bird, anything. Okay, इस वीडियो के लिए अभी आप ये प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक सब्जेक्ट को लेंगे एंड वी विल वर्क ऑन दैट. लाइक इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मेक सम fish, we can make some peacock, deer, birds, anything. Okay, so till then take care, bye.